الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے کئی جمعہ سے سورہ یوسف کے اسباق چل رہے تھے، تو پچھلی جمعہ کو جو باتیں ہوئی اس کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد تازہ ہو جائے۔ نمبر 50، بھول جانے پر ڈانٹ نہ پلائی جائے۔ نمبر 50 پر 1، علم انسان کو تخت پر بٹھاتا ہے۔ 50 پر 2، تہمت کی صفائی پیش کرنا ضروری ہے۔ 50 پر 3، محسن کا احسان شناس ہونا یہ بھی ضروری ہے اگرچہ وہ کافر ہو۔ نمبر 50 پر 4، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی رحمت ہے۔ نمبر 50 پر 5، جسم کے تمام عناصر اعتدال میں لانے کی ضرورت ہے۔ جسم کے جو عناصر ہیں اس کو اعتدال کے اندر رکھنا چاہیے۔ نمبر 50 پر 6، انسان کو حسن نہیں علم کام آتا ہے۔ نمبر 50 پر 7، عہدے کے احکام، یعنی جو احکام ہے عہدہ کب قبول کرنا ہے کب قبول نہیں کرنا، مانگ کر لینا کیسا ہے، یہ تمام باتیں گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ 50 پر 8، تن کی دنیا اور ہے من کی دنیا اور ہے۔ نمبر 50 پر 9، نافرمان اولاد کے بارے میں کبھی مایوس نہ ہو، اس کے بارے میں بھی بات تفصیل سے آ گئی۔ نمبر 60، نظر بد کا علاج اور اس کے احکام، نظر کب لگتی ہے، نظر کے لگنے سے بچنے کے لیے کیا کرنی چاہیے، یہ تمام باتیں گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ اب آگے بات چلتی ہے کہ 60 پر 1، اخلاص بھری نظر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان جیسے بری نظر سے کوئی انسان دیکھتا ہے تو اس کا اثر جس طرح ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان اخلاص بھری نظر سے دیکھتا ہے، اچھے ارادے سے دیکھتا ہے، اس اثر نظر کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے بری نظر جلن رکھنے والے کی نظر لگتی ہے، اسی طرح اخلاص کے ساتھ جو انسان دیکھتا ہے اس کی بھی نظر لگتی ہے۔ نمبر 62، مصلحت کے تحت ہیلا کرنا بھی جائز ہے۔ 60 پر 2 کیا ہے، مصلحت، یعنی کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہیلا کرنا درست ہوتا ہے۔ ہیلا کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستوں نے آ کر بلایا کہ ایک بہت بڑا میلہ لگنے والا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا ہے، کیونکہ ان کو بت پرستی سے بیزاری تھی، ان کو بت پرستی پسند نہیں تھی، تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ہیلا اختیار کیا کہ میں بیمار ہوں۔ وہ کیا ہے، دینی اعتبار سے بیمار ہے، بدنی اعتبار سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ہیلا اختیار کیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ بادشاہ کا جو ناپنے کا آلہ ہے ان کے بھائیوں میں سے بنیامین کے تھیلی میں وہ ناپنے کا آلہ جو بھی تھا اس کے اندر رکھ دیا، تھیلی میں رکھ دیا، کیونکہ بعد میں چل کر ان کو اپنے پاس روکا جا سکے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے بھی ہیلا اختیار کیا ہے۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ہجرت کے وقت پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون سا آدمی ہے،
तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को डर लगा कि कहीं ये लोग जाकर कुफारे मक्का को ना बता दे और वो लोग पीछे ना पड़ जाए। इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाज़ा रजुलुन यहदी लिस्सबील, ये वो आदमी है जो मुझे रास्ता बताता है। अब यहाँ पर रास्ते का मतलब ये है, सामने वाला समझा कि मक्के से मदीना जाने का रास्ता बता रहा है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि मुझे सही रास्ता, दीन का रास्ता, अल्लाह का रास्ता बताने वाला है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक समझा, सामने वाला एक समझा, तो इसको हीला कहा जाता है। बात तो सही बोलते हैं लेकिन उसके दो मतलब निकलते हैं, ऐसे चीजों को हीला तौलिया कहा जाता है। हीला और तौलिया में थोड़ा सा फर्क ये है, हीला जो है प्रैक्टिकल किया जाता है, तौलिया जो है वो जुबान से बोला जाता है। तौलिया यानी जुबान से बोलकर इस्तेमाल करने को तौलिया कहा जाता है, एक बोलकर एक मुराद देते हैं ऐसे। लेकिन जैसे आजकल नौजवानों के अंदर डबल मीनिंग बातें जो चलती है उसे बोलते हैं हीला तौलिया, उसे कहा जाता है। बोलता एक है लेकिन मीनिंग दूसरा लेता है। डबल मीनिंग के बातें जो करते हैं नौजवान, ऐसी चीजों को हीला तौलिया कहा जाता है। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सारा को बादशाह ने पकड़ लिया था, उस जमाने का फिरौन जो था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फिरौन, क्योंकि मिस्र के जो भी बादशाह बनता था उसको फिरौन कहा जाता था। उस जमाने के एतबार से मिस्र का जो भी बादशाह बने, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन अलग है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन अलग है। हर एक को फिरौन ही कहा जाता है, वो एक लेबल होता है। बादशाह ऐसा ही, हबशा का रहने वाले को हर बादशाह को नजाशी कहा जाता है। तो इस तरह तो ये बादशाह जो है, हबशे के बादशाह को नजाशी कहते हैं और मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते हैं। तो मिस्र का बादशाह इसारा अलैहिस्सलाम को जब पकड़ लिया था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी बहन है। तो यहाँ पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौलिया इख्तियार किया है कि सामने वाला एक समझता है कि उनकी सगी बहन है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि ये मेरी ईमानी बहन है, हालांकि सही देखे तो उनकी बीवी है। तो इस तरह तौलिया और हीला इख्तियार करना भी दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये समझनी चाहिए कि नाजायज कामों में हीला इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है, यानी जायज काम है उससे बचने के लिए हीला इख्तियार कर रहा है। ऐसा इख्तियार करना जो इबादत को टालने के लिए हो, जो कोई अहम काम को टालने के लिए इख्तियार करना, मसलन क्या है, रमजान में जो है जो इंसान सफर करता है उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है। अब ये सफर कर रहा है, क्यों सफर कर रहा है? रोजा छोड़ने के इरादे से सफर कर रहा है। तो यहाँ पर हीला इख्तियार कर रहा है, किसी भी तरह रोजा मैं छोड़ दूं। तो इस तरह हीला इख्तियार करना दुरुस्त और नाजायज है। इसी तरह ज़कात हर साल इंसान पर फर्ज होता है। मर्द का ज़कात अलग है, बीवी का ज़कात अलग है, शोहर का ज़कात अलग है। तो अब ये इख्तियार कर रहा है, ये साल मेरे ऊपर ज़कात है, वो साल आने से पहले मेरा पूरा माल क्या करता हूँ, मेरे बीवी के नाम पर ट्रांसफर कर देता हूँ, पूरे बीवी को दे देता हूँ। अब जब साल पूरा हुआ तो मेरे पास कुछ नहीं। तो इस तरह क्यों? अब मेरे पास कुछ नहीं तो ज़कात भी फर्ज नहीं। अब बीवी के पास एक साल तक माल रहेगा, जब उस पर ज़कात फर्ज होने का टाइम आएगा वो मुझे ट्रांसफर कर देगी, तो वहां पर भी अब ज़कात नहीं है। इस तरह हीला इख्तियार करना ये बिल्कुल जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इसी तरह बनी इसराइल के लोगों ने भी हीला इख्तियार किया था। अल्लाह ने कहा हफ्ते के दिन मछली ना पकड़ो, अल्लाह ने कह दिया था। तो उन लोगों ने क्या किया? हीला इख्तियार किया। क्या इख्तियार किया कि समंदर के बाजू में एक बड़ा गड्ढा खोद लिया, उसके अंदर से पानी इधर आता था, साथ ही साथ मछलियां भी उसके अंदर आ जाती थी। जब मछलियां पूरी इधर आ जाती है तो लोग क्या करते थे, वो दरवाजा जाने का, पानी जाने का जो रास्ता था वो बंद कर देते थे। वो मछलियां सब वो गड्ढे में रह जाती थी। उसके बाद सुबह में उठकर इतवार के दिन वो मछलियों को पकड़ लेते थे। ये हीला इख्तियार करते थे। तो इस तरह दीन के कामों के अंदर अगर कोई इंसान जिस चीज से अल्लाह मना करता है उस चीज को हीला करके, इसी तरह सूद को हलाल करने के लोग हीला इख्तियार करते हैं, जायज तरीके ढूंढते हैं, सूद को कैसा भी रहे तो जायज कर दे। किसी भी मौलवी साहब जाकर मसला पूछते हैं, बाज लोगों कभी आकर यहाँ पूछते हैं, कभी जाकर दूसरे लोगों से पूछते हैं, कभी जाकर तीसरे लोगों से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कैसा भी हो वो सूद क्या है, हलाल हो जाना। बैंक में आता सो वड्डी किसी भी तरह अपने पास लेने के लिए क्या करते हैं लोग? हीले इख्तियार करते हैं।
कैसा भी रहो सूद हलाल हो का मसलन या नहीं हराम बोल दिए तो दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे तरीके से कैसा भी रहो वो हलाल हो ना बोले तो उन्हें नाम डाल डाले जा उठा को, वो मौलाना बोले ना, वो मुफ्ती साहब बोले ना, उन्हें हलाल कहते हैं ना, उस वास्ते इख्तियार कर लेंगे, उससे खा लेंगे बोलकर लोग क्या करते हैं, सूद को हलाल करने के वास्ते एक नहीं से 10 मौलवी साहबों से 10 मुफ्ती साहबों से जाकर पूछते हैं, कौन तो भी एक बोलता क्या कि हलाल को उसकी बात को हम अमल कर ले को खा लेंगे। तो इस तरह हीला इख्तियार करना बिल्कुल जायज नहीं है। तो नंबर 60 पर 2 क्या है, हीला इख्तियार करना बाज़ चीजों के अंदर जायज है और इबादत और अज़कार के अंदर, अच्छे कामों के अंदर हीला इख्तियार करना जायज नहीं है। और उसके बाद नंबर 60 पर 3 तहम्मल मिजाजी के बगैर कोई बड़ा नहीं बन सकता। इंसान जब बड़ा होता है, इंसान का लेवल जब बड़ा होता है तो उस इंसान के अंदर बर्दाश्त की ताकत भी ज्यादा होनी चाहिए। आम इंसान का है तो उसके अंदर तो बर्दाश्त थोड़ी होती है। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो अपने बड़पन के हिसाब से, चाहे उम्र के एतबार से बढ़े चाहे लेवल के एतबार से बढ़े, पहले गरीब था अब मालदार बन गया, पहले लोएस्ट मिडिल क्लास था अब मिडिल क्लास बन गया है। तो इस तरह माल के एतबार से भी बड़ा हो जाए या उम्र के एतबार से बड़ा हो जाता है तो उस वक्त उसके अंदर बर्दाश्त की मिजाज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बर्दाश्त की मिजाज नहीं है तो इंसान बड़पन और बड़ा आदमी कहलाने के लायक नहीं रहता। तो इसलिए इंसान के अंदर, इंसान जितना बड़ा होता जाता है उम्र के एतबार से हो किसी भी एतबार से, तो उसके अंदर तहम्मुल का मिजाज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 60 पर 4 जब भी कोई अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी जरूर मदद फरमाते हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा कि अल्लाह मेरा यूसुफ गुम हो गया है मुझे लौटा दे, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। और इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हड्डियां कमजोर हो गई है, सर पे बाल चमकने लग गए हैं, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम को अता किया। और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर जब तहमत लगी तो उन्होंने अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनके हक में आयतें ही उतार दी कुरान में। तो इस तरह जब भी कोई इंसान अल्लाह ताला को सच्चे दिल के साथ पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी जरूर मदद फरमाते हैं, उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं और उसके मकसद को जरूर पूरा करते हैं। नंबर 60 पर 5 अल्लाह के सामने सबर के और ना सबर के मुनाफी नहीं है। यानी अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अल्लाह ताला से मदद मांगता है, तो क्या ये सबर के मुनाफी है क्या? बोले तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये सबर के मुनाफी नहीं है। अल्लाह के सामने अल्लाह ताला ने उसे कोई परेशानी दी तो अगर अल्लाह के सामने रो रहा है, अल्लाह ताला से मदद मांग रहा है, अल्लाह के सामने दुआएं कर रहा है, तो क्या ये सबर के मुनाफी है क्या? सबर के अपोजिट है क्या? बोले तो सबर के अपोजिट नहीं है, ये भी अल्लाह ताला से मदद मांगना सबर ही का काम है। नंबर 60 पर 6 गम जुदाई दूर करने का नुस्खा। यानी किसी इंसान पर गम आता है, परेशानी आती है, या कोई बच्चा खो जाता है, कोई बच्चा दूर हो जाता है। जैसे क्या है, माँ बाप बच्चे की शादी कर देते हैं, बच्चा जो है अपने बीवी के मोहब्बत में माँ बाप को भूल बैठता है, ऐसा जुदाई हो गई है, या बच्चा गुम हो गया है इस तरह। तो या शोहर क्या है, मियाँ बीवी के दरमियान दरार आ गई है, या है ना हमारे हस्बैंड अच्छी है, हमारे सास है ना हमारा दोनों अलग कर डालते हैं। ऐसे शिकायतें जो होती है जितने भी हो, यानी मियाँ बीवी की जुदाई हो, माँ बच्चे की जुदाई हो, या शोहर मर्द की जुदाई हो, इनके लिए एक उलमा फरमाते हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ें। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद शुरू और आखिर में दरूद पढ़े, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह। ये दुआ है, ये आयत जो है 21 मरतबा या 27 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी जुदाई को दूर कर देंगे। यानी बेटा जुदा दूर हो गया है, माँ बाप से मिलने के लिए नहीं आता है, तो उसके वास्ते ये दुआ करनी चाहिए। 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, इसमें कोई सा भी सूरा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, शुरू और आखिर में दरूद, और 21 मरतबा या 27 मरतबा इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह की इस आयत को पढ़नी चाहिए। नंबर 60 पर 7 जो सबब गम का है वही सबब खुशी का भी बनता है। यानी बस मरतबा अल्लाह ताला क्या करते हैं, जो चीज गम का सबब बनता है उसी को अल्लाह ताला खुशी में बदल देते हैं।
जैसे मसलन माल है ने खुशी का गम का भी सबब बनता है, खुशी का सबब बनता है। माल गया तो इंसान नाखुश होता है, माल आया तो वही माल आता है तो खुश हो जाता है। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम से जुदाई मिली, याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम दूर हो गए तो याकूब अलैहिस्सलाम गम के अंदर मुब्तला हो गए। फिर वही यूसुफ अलैहिस्सलाम दोबारा मिले तो याकूब अलैहिस्सलाम खुश हो गए। तो इस तरह जो चीज गम का सबब बनती है वही सबब खुशी का भी बनता है। इसी तरह सटपराट ये है कि जो सबब खुशी हो वही गम भी बन सकता है। यानी जैसे माल है, जैसे कि अभी मैंने बताया, माल गया तो इंसान को गम आ गया, वही माल आता है तो सब खुशी भी आ जाती है। तो दोनों चीजें एक ही चीज दोनों तरफ जिस तरह एक कॉइन के दो तरफ होते हैं, तो इसी तरह हर चीज के दो पहलू होते हैं कि कभी वो चीज आती है तो खुशी आती है, वो चीज जाती है तो गम भी होता है। जैसे कि माल है, बच्चा पैदा होता है तो इंसान को खुशी होती है, वही बच्चा अगर चले जाता है तो इंसान को तकलीफ होती है। तो इस तरह नंबर 69 करामत के अहकाम। करामत के अहकाम क्या है? तो नंबर 1 क्या है? मौजिजा और करामत में फर्क होता है। करामत किसे कहते हैं? जिसे अगर कोई नबी होने का कोई इंसान दावा करता है, उसके बाद कोई ऐसे बेखल्क आदत, यानी जो आदत आम तौर पर इंसान नहीं कर सकता, वो चीज अगर कोई इंसान करता है और वो नबी होने का भी दावा करता है तो उसे मौजिजा कहते हैं। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, पहले क्या है? लकड़ी था, वो छोड़ते हैं तो सांप बन जाता है, फिर पकड़ लेते हैं तो लकड़ी बनता है। तो ये क्या है? मौजिजा। और यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी होने का भी दावा किया, और ये आम तौर पर दूसरे आदमी नहीं कर सकते। दूसरा आदमी लकड़ी डाला तो सांप बनोगे तो नहीं बनता है, तो इसे मौजिजा कहा जाता है। जो इंसान नबी होने का भी दावा करे और बेखल्क आदत को वो बताता है तो उसको मौजिजा कहा जाता है। और इसी तरह अल्लाह वालों से जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, ऐसे बंदे अगर करामात दिखाते हैं, ऐसे बंदे अगर कोई नई चीज दिखाते हैं जो आम तौर पर नहीं होता, ऐसी चीजों को करामात कहा जाता है। उसके अलावा जो नॉर्मल लोग दिखाते हैं उसको क्या है? जादू कहा जाता है। यानी जो इंसान गैरुल्लाह से मदद मांगकर या दूसरी चीजों को रखकर अगर कोई इंसान बेखल्क आदतें बनाता है तो उसको जादू या आंखों का धोखा कहा जाता है। तो इन तीनों के अंदर फर्क होता है। और अल्लाह वालों की चीजों के अंदर बरकत भी होती है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचाना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपने चादर को निकालकर अपने भाई को दे दिया, कुर्ते को अपने भाइयों को दिया। तो वहां पर याकूब अलैहिस्सलाम क्या थे? अपने बेटे के गम में रो रो कर उनकी आंखें चली गई थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ ये ले जाकर उनके चेहरे पे मलो तो उनकी आंखें आ जाएंगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका चादर निकाल कर दे दिया, याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों से लगाए तो अल्लाह ताला ने फौरन उनकी आंखें याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों को वापस कर दिया। तो ये करामत समझे या नहीं तो अल्लाह वालों की चीजों की बरकत भी कहा जा सकता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कहा है वबक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, यानी जब मूसा बनी इसराइल के लोगों ने आकर एक गालिबन यूसा बिन नून अलैहिस्सलाम से आकर दरख्वास्त की कि हमें हमारे लिए कोई अमीर मुतय्यन करो, हम उनके साथ जाकर जंग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक आदमी को अमीर बनाया जाएगा, तो उसके अलाम निशानी ये होगी कि ये तुम्हारे पास एक संदूक आएगा, उसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के चीजें होंगी और हारून अलैहिस्सलाम की चीजें होंगी, जिसको फरिश्ते हाँक कर उस बॉक्स को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम, यहाँ पर क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम की चीजों को बरकत की चीज कहा गया है। तो इस तरह अल्लाह वालों की जो चीजें होती है वो भी बरकत होती है। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत सी करामात हैं। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई बच्चा को लाया जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर या कोई चीज जो है अपने मुंह में चबाकर उस बच्चे के मुंह में रखते थे। इसी को तहनीक भी कहा जाता है, यानी ताकि सामने वाला इंसान अगर अल्लाह वाला हो, अच्छा इंसान हो, अच्छे फीलिंग्स वाला हो, तो उसकी बरकतें उस बच्चे पर असर हो, तो उसे तहनीक भी कहा जाता है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे?
تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اس بچے کے اندر جاتا تھا، تو اسی کو تہنیک، تو اسی کو بھی برکت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، بہت ساری جگہ لوگ بورڈ لگاتے ہیں یہاں فلانی جگہ ہمارے نبی کے بال ہیں بول کر، اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ عمرہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد، اور اس کے بعد غزوہ موتا کے بعد، اور اس کے بعد حج کے حجۃ الوداع کے موقع پر 3 مرتبہ عمرہ کیا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بسر کے بالوں کو منڈایا، تو اس وقت اپنے بالوں کو صحابہ کے درمیان تقسیم کیا تھا، تو وہ تقسیم کرتے وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی کچھ بالیں ملے تھے، تو انہوں نے ان بالوں کو کیا ہے اپنے ٹوپی کے اندر سل لیے تھے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی جنگ کے اندر جاتے تو وہ ٹوپی پہن کر جاتے تھے، بعد میں چل کر وہ ٹوپی گم ہو گئی، جس کا افسوس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ ہوا۔ تو ایسے اللہ والوں کی استعمال کی چیزوں کے اندر بھی برکت ہوتا ہے، اور ان کو احترام کرنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ تو حجۃ الوداع کے اندر اور کرامات کا صادر ہونا بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ نمبر 70 کیا ہے؟ کرامات جو انسان دکھاتا ہے وہ اپنے دل سے، اپنے خواہش سے نہیں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر ارادے کے بعض لوگوں کے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اچھا انسان ہوتا ہے، اس کی مدد کے لیے، اس کے اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کرامات دکھاتے ہیں۔ لوگ کیا ہے بیانوں میں اپنے بیان کو اچھا بنانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں، الٹی سیدھی روایات، اور حالانکہ بعض لوگ کیا ہے اللہ والوں کی بلیوں کی بھی کرامتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ فلانے بلی کی اتنی کرامت تھی، فلانے بلی کے اندر اتنا پاور تھا، فلانے اللہ والے کا مسلح میں اتنا پاور تھا، فلانے اللہ والے ایسا ہوے میں اڑتے تھے، اس طرح الٹی سیدھے کرامات ان کے دکھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو کرامات کا صادر ہونا بندے کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ صادر کر فرماتے ہیں۔ نمبر 71 ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اچھی دعائیں ماں باپ اپنے بچوں کے واسطے کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، اچھی دعاؤں سے زیادہ بد دعائیں لوگ کرتے ہیں۔ ماں زیادہ کیا کرتی ہے، جب غصے میں آتی ہے تو مرتا نہیں کیا رے بیری کا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ وہ دعائیں اثر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آئندہ چل کر اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے کہ علماء بھی فرماتے ہیں، اور عبد الرحمن سدیس جو کعبے کے امام ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ بچپن میں بہت زیادہ شرارت کرتے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ مہمان گھر کے اندر آئے تو اتنا شرارت کیے کہ ماں نے محنت سے سالن پکائی تو اس کے اندر انہوں نے مٹی ڈال دی۔ ماں کو اتنا غصہ آیا کہ ان کو مارنے کے لیے دل چاہتا تھا، تو ماں نے کیا کیا، غصے میں بھی کیا کیا، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، اس نے غصے میں بھی اچھی دعائیں دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لی۔ بعد میں چل کر وہ حرمین کے دونوں کے امام بن گئے، مکے کے بھی امام بن گئے، مدینے کے بھی امام بن گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ماں باپ کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے معلوم نہیں، اس وجہ سے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کے بارے میں کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اچھی دعائیں دینے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ نمبر 72 جب ایک مرتبہ معاف کر دے تو اس کا تذکرہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی کو سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے تو بعد میں اسے اٹھا کو مارنا نہیں، سامنے والے کو اٹھا کو مارنا نہیں ہے۔ اگر اسی طرح کوئی سامنے والا غلطی کیا ہے، بعد میں اس سے توبہ کر لیا ہے تو اس کو بھی اٹھا کر مارنا نہیں ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں بہت ساری مرتبہ بتا دیا تھا تعلیم کے اندر بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو بعد میں اگر کوئی دوسرا انسان اسے اٹھا کو مارتا ہے تو وہ اٹھا کو مارنے والا انسان جب تک نہیں مرے گا وہ گناہ کے اندر وہ ملوث نہ ہو جائے۔ مثلا کیا ہے، اگر کوئی انسان شراب پیتا تھا، اب اس گناہ کو اس نے چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، کسی بھی طرح اچھا بن گیا، جماعت میں جا کو کی، کسی کی بات اثر کر کو کی، وہ توبہ کر لیا ہے۔ اب دوسرا انسان اٹھا کو مارتا ہے، معلوم لے اس سے پہلے تیرا جینا کیسا رہا کی بول کر اٹھا کو مارتا ہے، اس سے پہلے تو کیسا رہا کی معلوم لے، پی کو کیسا روٹا کو پڑیا کو رہتا تھا کہ معلوم لے بول کر اٹھا کے مارتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، تو جو انسان اٹھا کر مارا ہے تو وہ انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک بھی انفیخور نہ بن جائے۔
तब तक भी वो जिनाकार ना बन जाए। जो चीज उठाकर मारा तब तक नहीं मरेगा, तब तक उस गुनाह के अंदर वो भी मुलव्विस ना हो जाए। तो इसलिए इंसान को जो चीज माफ कर दिया गया हो, चाहे वो अपना पर्सनल गुनाह हो या सामने वाले के गुनाह को माफ कर दिया हो, तो उसको उसका तज़किरा बार बार करना, उसको याद दिलाना अच्छी बात नहीं है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की गलती को माफ कर दिया, तो उसके बाद आइंदा से उसका तज़किरा नहीं फरमाया। तो इसी तरह जो इंसान कोई गलती करता है तो उसका तज़किरा माफ करने के बाद दोबारा नहीं करनी चाहिए। नंबर 73 70 पर 3, ईमान पर खातिमा तमाम नेमतों से बड़ी नेमत है। यानी ईमान पर इंसान का खातिमा होना ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमारी ईमान पर खातिमा बिल खैर फरमाए। और नंबर 70 पर 4, मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। इंसान क्या है, जब मुसीबतें परेशानी आती है तो फौरन यही बोलता है मौत आए तो मर जाता चले गोला छतर, इस तरह मौत की तमन्ना करता है। तो मौत की तमन्ना करना भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है, क्योंकि ये जान और माल क्या है, अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ने हमें दिया है, तो हमें इसको सही इस्तेमाल करके अल्लाह के हवाले, जब अल्लाह चाहे वो वापस लेगा, तब तक हमें मौत की तमन्ना करने की इजाजत नहीं है, मौत की तमन्ना करना नहीं है। नंबर 75, इल्म गैब और अंबाउल गैब में फर्क होता है। इल्म गैब क्या है? इल्म गैब उस चीज को कहते हैं जो गुजरी हुई बातों को भी जानता हो, आइंदा होने वाली बातों को भी जानता हो, उसे कहते हैं इल्म गैब। अंबाउल गैब किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला अपने नबियों को कुछ खास चीजों के बारे में बता देता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के बहुत सारे अहवाल अल्लाह ताला ने बताया, क़यामत के दिन ऐसा होगा ऐसा होगा, अल्लाह के नबी ने भी बताई है। सबसे पहले लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, हिसाब किताब शुरू होना नहीं है, जाकर थोड़ा अल्लाह से रिक्वेस्ट करो। तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। इस तरह अल्लाह के नबी ने क़यामत के एक एक मंजर को भी बता दिया है और बहुत सारे अहवाल। और जैसे कि जंगे बदर के मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया फलाना काफिर यहाँ पर मरेगा, फलाने काफिर को यहाँ कत्ल किया जाएगा, फलाने काफिर को यहाँ मारा जाएगा। इस तरह अल्लाह के नबी ने जंगे बदर के मौके पर फरमाया है। बाज़ मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे मैं सामने देखता हूँ वैसे ही पीछे देखता हूँ। तो ये तमाम चीजें क्या है, अंबाउल गैब इसको कहा जाता है। इसका माने ये नहीं कि उन्हें पूरा नॉलेज रखता हो, यानी आगे होने वाले का भी नॉलेज रखता हो और पीछे हुआ उसका नॉलेज रखता हो, इसको नहीं कहा जाएगा। अल्लाह ताला कुछ वक्त के लिए कुछ बातें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बताते हैं, उसको अंबाउल गैब कहा जाता है। तो इसलिए इंसान को बाज़ लोग इस वजह से क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बास खबरें ऐसे बताने की वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आलमुल गैब कहते हैं। हालांकि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल गैब नहीं है। जो चीजें अल्लाह ताला ने उनको बतलाई है वही बतलाएंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बशर है, इंसान है, हम यही कहते हैं। नंबर 76, अल्लाह के यहाँ अपना मर्तबा मालूम करने का पैमाना। यानी अगर कोई अल्लाह के यहाँ हमारा लेवल क्या है, अल्लाह के पास मेरा दर्जा क्या है, अल्लाह के पास मेरा पोजीशन क्या है, अगर इंसान को मालूम करना चाहता है तो अपनी दुनिया के अंदर अपने पोजीशन दुनिया के अंदर अपने अमाल को देखनी चाहिए। अगर वो दुनिया के अंदर अच्छे अमाल करता है, नेक अमाल करता है, उसकी जिंदगी को देखनी चाहिए। अब 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कितना वक्त अल्लाह के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए दे रहा है, कितना वक्त अपने कमाई के लिए, अपने आसानी के लिए, अपने आराम के लिए दे रहा है, देखनी चाहिए। जितना वक्त दीन के लिए दे रहा है तो अल्लाह के नजदीक उसका पोजीशन बड़ा है, ज्यादा दे रहा है तो उसका पोजीशन अल्लाह के पास बड़ा है। अगर कम दे रहा है तो अल्लाह के यहाँ उसका पोजीशन भी वैसा ही कम है। अगर देखें दुनिया के अंदर कोई इंसान क्या है, 24 घंटे में से 14 घंटे इबादत के अंदर गुजारता है, तो अल्लाह के यहाँ भी उसका मर्तबा बहुत बड़ा है। अगर कोई इंसान 14 घंटे 20 घंटे 18 घंटे कमाई में और 2 घंटे 1 घंटा क्या है दीन के वास्ते दे रहा है, तो इसी तरह उसका लेवल भी इसी तरह होगा। या नहीं, ऐसा समझे कि उसका दिल किस तरफ ज्यादा है,
اس کا دل زیادہ مال کے اندر دنیا کے اندر لگا ہے تو اس کا لیول بھی ویسا ہی نیچے ہوگا اللہ کے یہاں. اگر اس کا دل دین کے طرف اور اللہ نماز کے طرف عبادت کے طرف زیادہ ہے تو اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ بھی اسی طرح بڑا ہوگا. تو اللہ کے یہاں میں اپنے مرتبے کو جانچنے کے لیے اس اعمال کو اپنے اندر کے اعمال کو دیکھنی چاہیے. نمبر 70 پر 7 انبیاء اور علماء سورج اور چاند کے مشابہ ہیں. یعنی جیسے ابراہیم یعقوب جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے ستاروں کو اور چاند کو سورج کو خواب کے اندر دیکھا تو اس وقت ان کی تعبیر وہ بتائی گئی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نے آ کر ان کے سامنے سجدہ کرے اور یعقوب علیہ السلام سورج ہیں اور ان کی بیوی چاند ہے تو ان کی تعبیر وہ بتائی. تو دنیا کے اندر دیکھا جائے تو انبیاء اور علماء جو ہے سورج اور چاند ستاروں کی طرح ہے. جس طرح سورج سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے تو اسی طرح علماء سے انسان صحیح راستہ اختیار کرتا ہے, صحیح راستہ اسے معلوم ہوتا ہے. جس طرح ستاروں سے انسان کو کیا ہے رات میں اندھیرے میں راستہ بتلایا جاتا ہے تو اسی طرح علماء کیا ہے اس دین کے لیے چراغ ہوتے ہیں, ستارے ہوتے ہیں جن کو صحیح راستہ انسان کو وہ بتاتے ہیں. نمبر 70 پر 8 سورہ یوسف میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ایک لمبا سٹوری اللہ تعالیٰ نے قریب آدھے پارے سے بھی زیادہ سورہ یوسف کو بتایا ہے. تو ایک لمبا سٹوری ہے جو اس سے پہلے کتابوں میں کسی کے اندر موجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے سورت کو بتلائی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے. نمبر 70 پر 9 اسباب شر سے دور بھاگنا چاہیے. جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہے ایسی چیزوں سے ہمیں دور بھاگنی چاہیے. مثلا آگ ہے, جلاتی بول کو معلوم ہے تو ہمیں کیا کرنا, اس سے دور بھاگنا نہیں. جو بھی کرتا اللہ کرتا بول کر آگ میں کودنا عقل مندی کی بات نہیں ہے. نمبر 80 نقصان دہ چیزوں سے دوسروں کو آگاہ کرنا چاہیے. اگر کہیں پر نقصان ہے, کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے تو ایسی چیزوں کو ایسی چیزوں سے دوسروں کو اطلاع کرنا, دوسروں کو مطلع کرنا, بات کو معلومات کرانا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.